Next topic is Kirchhoff's second law or loop rule. Around any closed loop of a network, the algebraic sum of changes in the potential must be zero, or the algebraic sum of the EMFs in any loop of a circuit is equal to the sum of the products of the currents and resistances in it. So, according to this first statement of Kirchhoff's second law, we get summation delta V is equal to 0, means algebraic sum of changes in the potential must be 0. According to the second statement of Kirchhoff's second law, we get mathematical expression summation of EMF which is equal to summation IR, means the algebraic sum of EMFs in any loop of a circuit is equal to sum of the products of the currents and resistances in it. Next, sign conventions for applying loop rule. Number 1 is we can take any direction, clockwise or anti-clockwise, as the direction of traversal. Second, the EMF of the cell is taken as positive if the direction of traversal is from negative to the positive terminal. Third, the EMF of the cell is taken as negative if the direction of traversal is from positive to the negative terminal. Number 4, the current resistance product is taken as positive if the resistor is traversed in the same direction of assumed current. So if, let us suppose, current is flowing in this direction and the resistor is also traversed in the same direction, then IR product is taken as positive. If current is flowing in this direction but resistor is traversed in the opposite direction, then IR product is taken as negative. Clear? Let us consider this circuit and let the direction of traversal is clockwise. Clear? From loop A, B, C, F, A, the algebraic sum of current and resistance products is I1 R1 plus minus I2 R2. This sign against I2 R2 negative, and this is according to the sign convention. In simple words, हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स्ड है दैट इज़ क्लॉकवाइज, और हमारा करंट जो इस रजिस्टर से होके जा रहा है, क्लियर, सो वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज. क्लियर. सो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ट्रेवर्स्ड जो डायरेक्शन है और जो करंट इस रजिस्टर के बीच में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम. ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो I1 R1 प्रोडक्ट के आगे कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव. नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो I2 फ्लो कर रहा है. क्लियर. ठीक है. इन दिस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है हमारे पास FC, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है. अब ये देखो, ये करंट जो है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. ठीक है. बट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज क्लॉकवाइज. इसकी कौन सी है, करंट की, एंटी क्लॉकवाइज. तो इसीलिए हमारे पास I2 R2 प्रोडक्ट के आगे कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव. सो वी गेट I1 R1 माइनस I2 R2. क्लियर. नेक्स्ट, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इन दिस लूप. EMF का सम क्या है,
अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेल लगे हैं सर्किट में, दिस सेल और दिस सेल। इस सेल की ईएमएफ है ये और इसकी ईएमएफ है दिस वन, ठीक है। अब ये ईएमएफ जो है हमारे पास, इसको ईएमएफ वन को के आगे हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन ईएमएफ ऑफ अ सेल का कब आता है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज़ फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो ये क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा था, पहले किस में एंटर किया, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस ईएमएफ ऑफ अ सेल, क्लियर। सो according to the sign convention, this EMF takes positive sign. Now check here, the direction of traversal is clockwise और यहाँ पे हमारे पास पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और देन नेगेटिव टर्मिनल। जब हम इस EMF की बात करें सेल की, क्लियर, तो हमें पता है कि EMF ऑफ अ सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। सो हियर इट इज नेगेटिव, क्लियर। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल, द algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of current and resistance products. So the algebraic sum of EMF is EMF1 minus EMF2 is equal to algebraic sum of current and resistance products is I1 R1 minus I2 R2. Take this equation number 1. Now applying Kirchhoff's rule to the loop C, D, E, F, C. Now in this loop C, D, E, F, C, we have only one cell whose EMF is 2, clear. So EMF 2 is equal to, जब हम किरचॉफ सेकंड लॉ को इस अपर लूप में अप्लाई कर रहे हैं तो EMF एक ही है, दैट इज़ 2, और इसमें EMF 2 है और इसका साइन कन्वेंशन हमने चेक करना है। अब देखो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स्ड हमने किस डायरेक्शन में ली, क्लॉकवाइज, क्लियर, और क्लॉकवाइज जा रहा है और पहले नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, so in that case EMF of the cell is positive, so here it is positive. Next, product of current and resistances, तो उसमें यहाँ पे जब हम लगा रहे हैं तो इस रजिस्टर में करंट, इस जो ब्रांच है इसमें रजिस्टर R2 लगा है और इसमें करंट कौन सा जा रहा है, I2, तो इन दोनों की प्रोडक्ट I2 R2 होगी, क्लियर। और इनकी डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज, और हम इस लूप में जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है उसकी भी डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज लगाई हुई है, तो ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। सो क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसकी साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल क्या है, सेम। नेक्स्ट इसकी बात करें, ठीक है। अब देखो, अब जब सी जंक्शन पे हम पहुँचे, यहाँ से हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, और ये यहाँ पे करंट कितना पहुँचा, I1, और इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, तो यहाँ तक कितना करंट आ गया, I2। और सो इस जंक्शन पे दोनों करंट मीट करें, जैसे हमने जंक्शन रूल किया था और किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था कि जो भी हमारे पास जंक्शन पॉइंट पे जितने भी करंट आ रहे हैं उन सारे करंट का सम क्या होता है, 0। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहे होते हैं तो उनके आगे कौन सा साइन लेते हैं हम, पॉजिटिव। तो टोटल करंट क्या आ गया यहाँ पे, एट पॉइंट सी विच एक्ट एज ए जंक्शन फॉर दीज टू करंट, सो टोटल करंट एट पॉइंट सी इज I1 प्लस I2 विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस, क्लियर, जो यहाँ इस पार्ट में फ्लो कर रहा है सर्किट के, क्लियर। तो इसकी डायरेक्शन देखो,
सो ये जो हमारे पास करंट है I1 I2, इसकी डायरेक्शन भी कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज। क्लियर, इधर से ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। सो I1 I2 इंटू R3 दैट इज़ द रजिस्टर। इस ब्रांच में डी ब्रांच और वायर में हमारे पास रजिस्टर लगा था R3। सो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड आर रेजिस्टेंस। सो ये जो करंट यहाँ पे जा रहा है सेम इसमें भी यही जाएगा। सो I1 प्लस I2 करंट इस ब्रांच में से भी पास होकर जाएगा, दैट ब्रांच इज DE। क्लियर। सो इसके आगे भी कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ EMF 2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। जब हम किरचॉफ्स लॉ को इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं, CDEFC। क्लियर। सो द Kirchhoff's second law is also called Kirchhoff's voltage law. So it is also written as KVL. Justification. This law is based on the law of conservation of energy, as the electrostatic force is a conservative force, so the work done by it along any closed path must be zero. So Kirchhoff's जो first law है, that law is based upon the law of conservation of charge, and the Kirchhoff's second law is based on the law of conservation of energy.